تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 83 ارب روپے کراچی کی ترقی پر خرچ ہوں گے۔ سندھ کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام محکموں کو کام تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ وزراء کو ترقیاتی کاموں کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت کر دی۔ سینئر وزیر شجر انعام میمن کی اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ KPK کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ کرانا چاہتے تھے۔ مزید عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکج۔ سندھ کابینہ کے بڑے اجلاس میں بڑے فیصلے سامنے آ گئے۔ تمام محکموں کو ترقیاتی کام تیز کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تمام محکموں کو حکم دے دیا۔ وزراء کو ترقیاتی کاموں کی خود نگرانی کرنے کی ہدایت۔ کراچی میں موبلٹی پروجیکٹ کے لیے ورلڈ بینک کے فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ۔ سیلاب متاثرین کے لیے گندم پر سبسڈی کی منظوری۔ سندھ کلائمیٹ چینج فنڈ بورڈ کا قیام۔ سندھ سیکریٹریٹ اور اسمبلی ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کی سہولت ملے گی۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے اجلاس میں ہوئے فیصلوں سے آگاہ کر دیا۔ جو زمینوں کی جو اکوائر کرنے تھے اور باقی جو تھا، تو سندھ حکومت ابھی تک 10.4 بلین روپیز آلریڈی پے کر چکی ہے اس منصوبے کے لیے۔ جو حیدرآباد اور سکھر کا ایک موٹر وے بننا ہے، جو کہ ابھی تک نہیں بن پا رہا، وفاقی حکومت نے بنانا ہے، اس میں جو سندھ حکومت کی ذمہ جو چیزیں تھیں اسے بڑھ کر سندھ حکومت جا چکی ہے۔ ابھی تک 10.4 بلین روپیز جو ہے سندھ حکومت بن چکی ہے۔ شرجیل میمن نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعلیٰ KPK کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ کرانا چاہتے تھے۔ سیکیورٹی خدشات موجود تھے۔ تیز شدہ راستوں کی خلاف ورزی کی گئی۔ سندھ حکومت نے تحمل کا مظاہرہ کیا تاکہ حالات خراب نہ ہوں۔ حیدرآباد جانے، بسم اللہ، حیدرآباد گیا۔ حیدرآباد میں ان کو مکمل طور پر وہی سیکیورٹی، وہی ساری چیزیں جو انہوں نے روٹ دیا تھا کہ واپسی میں جو ان کو روٹ انتظامیہ نے دیا تھا اور انہوں نے اس کو اگری کیا تھا، اس روٹ بنے کے رات کو یہ چلا گیا حیدرآباد والی پل پہ۔ اب مجھے وہ کتنے لوگ جو حیدرآباد سے واقعی میں حیدرآباد آتے جاتے ہیں، آپ لوگ دور جاتے ہوں گے، آپ روٹین میں ابھی بھی چلے جائیں نا، دن کا ٹائم ہے، وہاں پہ ٹریفک میں پھنسیں گے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ 8 فروری کو سندھ میں کوئی ہڑتال یا کاروبار بند کرنے نہیں دیں گے۔ کراچی کو ماضی میں ہڑتالوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ کیمرامین شاذب رضا کے ساتھ عاجز، سٹی 21۔ بوند بوند کو ترستے کراچی کی سن لی گئی۔ اب مہنگے داموں ٹینکرز کے بجائے نلکوں سے پانی ملے گا۔ شہر میں ٹینکرز اور ہائیڈرنٹس کے ذریعے پانی کی فراہمی بند کرنے کا فیصلہ۔ میئر کراچی نے واٹر کارپوریشن کے اعلیٰ حکام کو متبادل نظام کی ہدایت جاری کر دی۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ پانی چوری میں ملوث افراد کے مقدمات واٹر ٹریبیونل میں سنے جائیں گے۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے بھی ہر شہری کو پانی کی فراہمی اولین ترجیح قرار دیا۔ شہر میں پانی چوری کے تمام راستے بند کرنے کا پلان۔ عوام کو مہنگے داموں ٹینکر کے پانی سے چھٹکارے کی امید۔ کراچی والوں کو پانی اب ٹینکروں میں نہیں، لائنوں میں ملے گا۔ شہر کے تمام 7 ہائیڈرنٹ ختم کرنے کا فیصلہ۔ جیالے میئر کی واٹر کارپوریشن کو متبادل نظام بنانے کی ہدایت۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ واٹر ہائیڈرنٹ سے ماہانہ 30 کروڑ روپے ریونیو حاصل ہوتا ہے۔ واٹر ہائیڈرنٹس کا کانٹریکٹ ختم ہو چکا، نیا جاری نہیں کریں گے۔ انہوں نے واٹر کارپوریشن کو ہدایت کی کہ شہر میں موجود تمام 7 ہائیڈرنٹس کو بتدریج ختم کرنے، لائنوں کے ذریعے پانی کی فراہمی کریں۔ ٹینکرز کے ذریعے پانی فراہم کرنا مستقل حل نہیں ہے۔ مرتضی وہاب کا پانی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کا بھی فیصلہ۔ کہا کہ پانی میں چوری میں ملوث افراد کے مقدمات واٹر ٹریبونل میں سنے جائیں گے۔ ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ میئر کراچی کی اپیل پر سندھ حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ شہری انتظامیہ بھی عمل درآمد کر کے دکھائے گی۔ ہر شہری کو پانی کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ جی، کراچی میں اس وقت مجموعہ طور پر 7 سرکاری واٹر ہائیڈرنٹ موجود تھے۔ میئر کراچی کی ہدایت پر حکومت سندھ نے ایک واضح اور دور اندیش فیصلہ کیا۔ ان ہائیڈرنٹس کو بتدریج ختم کرتے شہریوں کو پانی کی فراہمی کا انحصار مستقل طور پر جدید یعنی لائنوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس اقدام کا مقصد شہریوں کو طویل مدت سہولت فراہم کرنا اور پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنانا۔ شہریوں نے حکومت اور میئر کراچی کے فیصلوں کو سراہا اور امید ظاہر کی کہ اب مہنگے داموں ٹینکر سے چھٹکارا ملے گا۔ اب پانی بھی ہم خرید کے پینے پہ مجبور ہو گئے۔ ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ ٹینکر مافیا کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے۔ بالکل کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسے کتنے کراچی کے شہر کے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کی سپلائی بالکل ہے، لیکن ٹینکر مافیا پانی چوری کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ نہ کراچی میں گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ سڑکیں۔ پانی چوری کرنا تو ویسے بھی جرم ہے، اور شہر میں پانی کی اتنی قلت ہے۔ میں میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پانی چوری پہ جو ہے نا ایکشن لیا، اور یہ زیادہ تر جو حادثات کا وہ
बनते हैं वो जो है ना वो टैंकरों की वजह से ही जो है ना मौत होती हैं। और हाइड्रोन अगर ये बंद होंगे तो मतलब बहुत से मुश्किलात जो है वो आसान हो जाएंगी, शहरियों को पानी मुयस्सर हो जाएगा। पानी चोरी करना तो वैसे जुर्म है, हर जगह पानी चोरी हो रहा है। और ये वाटर टैंकर वाले तो खतरनाक ड्राइविंग करते हैं और हादसा भी इन्हीं की वजह से हो रहे हैं। शहर में रोजाना 200 से 250 मिलियन गैलन पानी चोरी और ज़ाया, और ज़िला केमाड़ी, गरबी, शर्की और कोरंगी सरे फहरिस्त हैं, जहां चोरी शुदा पानी टैंकरों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में बेचा जाता है। दूसरी जानिब पिपली पंपिंग स्टेशन पर नई लाइन का मंसूबा तकमील की जानिब गामजन है, जहां अप स्ट्रीम साइट पर पाइपलाइन मंसूबे का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि डाउन स्ट्रीम साइट पर 70% काम मुकम्मल। मंसूबे की तकमील से शहर मुतासर इलाकों में तामीर बहाल कर दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तजवीज़। 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे सस्ता करने की तजवीज़। साथ ही 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 70 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद 16 जनवरी 2026 से नई कीमतों पर अमल दरामद होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, पेट्रोल एक मरतबा फिर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की नई तजवीज़। ज़राए का कहना है कि 1 लीटर पेट्रोल 4 रुपये 59 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 253.17 रुपये से कम होकर 248.58 रुपये का हो जाएगा। शहरियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को मामूली कमी करार दे दिया। आवाम के लिए तो सरप्राइज है ना कि जितना ज़्यादा कम होगा इतनी ज़्यादा सेल भी होगी हम लोगों की भी। तो ये है कि ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा कम होना चाहिए ताकि आपकी सेल वॉल्यूम भी बढ़े और काम भी बढ़े ना, शहर में जो पेचीदगी है वो भी खत्म हो। गवर्नमेंट कहाँ सस्ता करे, एक दिन सस्ता करे दूसरे दिन पे महंगा हो जाएगा। ये तो ड्रामाबाजी है भाई, इस मुल्क में ड्रामाबाजी है। पेट्रोल के लिए तो कम होने चाहिए, यहाँ पे तो रोजगार तो इतने हैं नहीं लोगों के, और यहाँ पे जो है ना कीमतें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। तो बोलते कम से कम 120 रुपये होना चाहिए, जैसा महंगाई है जैसा हालात है तो 120 रुपये होना चाहिए। महंगाई बहुत है, आपको पता है आजकल अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो आवाम के लिए थोड़ी बहुत सहूलत तो करनी चाहिए हुकूमत को। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 70 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 257.8 रुपये से कम होकर 254.38 रुपये का हो जाएगा। 1 लीटर मट्टी का तेल 1 रुपये 82 पैसे तक सस्ता करने और 1 लीटर लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 8 पैसे तक कमी की तजवीज़ है। आलमी बाजार में पेट्रोल और डीजल पर प्रीमियम पर भी कमी हुई है। ज़राए का कहना है कि मंजूरी के बाद नई कीमतों पर 16 जनवरी 2026 से अमल दरामद होगा। अशरफ खान, सिटी 21। जिला कोरंगी के अवाम के लिए पीपल्स पार्टी का तोहफा। नादरा रीजनल हेड ऑफिस और टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कोरंगी के दरमियान मेगा सेंटर के क़याम के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। TMC कोरंगी की जानिब से नादरा रीजनल हेड ऑफिस को 19,000 स्क्वायर फुट अराजी फराहम कर दी गई, जिससे 40 लाख शहरियों को सहूलत हासिल होगी। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। नादरा और TMC कोरंगी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। नादरा रीजनल हेड ऑफिस को 19,000 स्क्वायर फीट अराजी 30 साल के लिए फराहम। सीनियर सूबाई वजीर सैयद नासिर शहनशाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो का मंसूबा है कि शहरियों को बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जाए। नादरा मेगा सेंटर बनने से आवाम को सहूलियत मैसर आएंगी। ये जो सेंटर्स बन रहे हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटीज अपग्रेड की जा रही हैं, तो ये उसी का हिस्सा है और प्रोविंशियल और फेडरल लॉज हैं जिस पे ये मामला टैकल किया जाएगा। DG नादरा सिंध आमिर अली का कहना है कि शहर में एक और जदीद तरीन मेगा सेंटर कोरंगी में कायम होने जा रहा है। मेगा सेंटर 30 विंडोज काउंटर्स पर मुश्तमिल होगा। रोजाना की बुनियाद पर मेगा सेंटर से 3,000 से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। इस मेगा सेंटर में तकरीबन 40 लाख के लोगों के आबादी के लोगों को हम एंटरटेन करेंगे। 30 काउंटर्स होंगे। ये 24/7 राउंड द क्लॉक चलेंगे विद 3 शिफ्ट्स। और इसमें जो एरियाज़ हैं, जिस एरियाज़ को ये करेगा कवर, वो उसमें लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर मॉडल कॉलोनी, शकरा रोड, बिन कासिम, स्टील टाउन, इब्राहिम हैदरी, कयूमाबाद और इसके गुर्दनवाद। तकरीर में टाउन चेयरमैन कोरंगी, मुशीर वजीर आला नजमी आलम व दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। TMC कोरंगी की जगह अवेलेबल है। हम नादरा से मुआहदा करते हैं और इनको कहते हैं कि हमारे टाउन में बिल्डिंग बनाएं ताकि यहाँ के लोग
मुस्तफिज हो सके। कोरंगी नादरा मेगा सेंटर में 800 से 1000 अफराद के लिए इंतजार गाह फराहम की जाएगी। मेगा सेंटर से कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, मलीर, मॉडल कॉलोनी, चकरागोट, बिन कासिम, स्टील टाउन, इब्राहिम हैदरी समेत आपके मकीन इस्तेफादा कर सकेंगे। बाज़ निजी स्कूल्स ने मौसम सरमा के दौरान औकातकार में तब्दीली के हिदायतनामे को मानने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन हैदर अली कहते हैं कि तलबा और तालिबात को सुबह 8:45 बजे तक बुलाया जा रहा है ताकि असम्बली और दीगर इंतजामी काम मुकम्मल हो जाएं और क्लासेस वक्त पर 9 बजे शुरू हो सकें। मजीद क्या कहा ये जानते हैं। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह साहब के इस दानिशमंदाना और मंतकी फ़ैसले को हम तमाम प्राइवेट स्कूल्स ने सिंध भर के इसका खैर मकदम भी किया है और इसे कबूल भी किया है कि सर्दी की शिद्दत में चूँकि इजाफ़ा देखा गया तो अब मौसम को देखते हुए जो है वो सुबह के औकात कार जो है वो तब्दील किए गए हैं। लेकिन अगर कहीं से ये इत्तला आ रही है कि स्कूल्स जो है प्राइवेट स्कूल्स ख़ास तौर से इस टाइमिंग की पाबंदी नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद ये कुछ समझने का फ़र्क है। अगर मौसम की शिद्दत इसी तरह से रहती है तो हम इस तरह के शेड्यूल की पाबंदी कर सकते हैं और आप ही के तवस्सुत से हम वज़ीर तालीम सिंध से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि आइंदा साल से यकीनन उनके विजनरी प्रोग्राम में ये ज़रूर शामिल होगा कि मौसम के हिसाब से सर्दियों की छुट्टियाँ की जाएँ। आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची में सीवरेज के बढ़ते मसाइल, लियारी के इलाके मूसा लेन की गलियां नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। गटर उबलने से इलाका मकीन गंदगी का ढेर बन चुका है। न्याजी चौक शावली रोड 3 बरस से खस्ताहाली का शिकार है। इलाका मकीन परेशान, सीवरेज सिस्टम और सिस्टम की बेहतरी का मुतालबा किया है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। शहर कायद में मसाइल के अंबार, सीवरेज का नाकिस सिस्टम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। सीवरेज का बहता पानी मच्छरों की आमाजगाह बनने लगा। लियारी के इलाके मूसा लेन में गलियां गंदे पानी का जौहर बन गई। इलाके में सीवरेज का पानी जमा होने से कई मसाइल ने जन्म ले लिया। तकरीबन 4-5 महीने हो गया सही ये हो रहा है। 2-3 मरतबा पहले भी हुआ सही, फिर वो आया बनाया, लेकिन उसके बाद फिर भी ये हो रहा है ऐसा। गाड़ी वाला भी 2-3 मरतबा आया सही है, उसने भी किया लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हुआ। इधर तकरीबन नमाजी भाइयों को भी मसला होता है सही है, वो आते हैं नमाज के लिए जाते हैं, उसका कपड़े भी गंदे होते हैं। गंदगी के बाइस मच्छरों की बहुतात की वजह से बीमारियां फैलने लगी। गंदे पानी के बाइस मस्जिद जाने वाले नमाजी भी अजियत का शिकार रहे। बहुत मुश्किल होता है, नमाज लोगों को भी मुश्किल होता है, आम लोगों को भी मुश्किल होता है। इधर मच्छर बहुत होता है। 2-3 साल से यही हाल है। आज तो कुछ पानी को खुशक होया हुआ है, नहीं तो वरना पानी यहाँ पैदल लेडीज भी नहीं गुजर सकती है, इतना हाल बुरा होता है। इधर न्याजी चौक शावली रोड 3 बरसों से खस्ताहाली का शिकार है। जगह जगह गढ़ों ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। रिहायशियों का कहना है कि बारिश के बाद गढ़ों में पानी जमा हो जाता है, जिससे हादसात भी होते हैं। ये 2-3 साल हो गए ये टूटा हुआ है, इसको कोई नहीं बनाता है। बारिशों में यही होता है, सारा पानी होता है, रास्ता नहीं होता है, जाने आने का मुश्किल होता है। फिर क्या करे, घर से नहीं निकला जाता है। 3 से 4 साल हो गए हैं, रोड अभी तक नाजिम वगैरह किसी ने अभी तक नहीं बनाया। हर कोई ये आ रहा है, अपना बजट लेके चले जाते हैं, कोई भी आता है, जमादार आता है, अपना सफाई करके चले जाते हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि गटर के ढक्कन लगाने के साथ सीवरेज का निजाम भी बेहतर बनाया जाए और सड़कों की मुरम्मत की जाए ताकि मुश्किलात आसान हो सके। कैमरामैन नवेद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। गुलबर्ग टाउन UC 6 अजीजाबाद का मोहम्मदी ग्राउंड का तरक्याती काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। टाउन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास कहते हैं कि 1 माह बाद ग्राउंड को नई शक्ल देखेंगे। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। बाउंड्री वॉल, लाइट्स का काम मुकम्मल, जॉगिंग ट्रैक, ग्रास का काम आखिरी मराइल में दाखिल। गुलबर्ग टाउन UC 6 अजीजाबाद के मोहम्मदी ग्राउंड की किस्मत जाग उठी। टाउन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास और काउंसलर कहते हैं 1 माह बाद ग्राउंड को नई शक्ल में देखेंगे, जिसके बाद इस इलाके के बच्चे साफ सुथरे माहौल में क्रिकेट खेल सकेंगे। हाफिज साहब के विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं कि नौजवानों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज़ की वजह से हम ये ग्राउंड इंशाअल्लाह नेमतुल्लाह के बाद 20-21 साल बाद ये दोबारा इस ग्राउंड में काम होने जा रहा है और इलाका मकीन बहुत खुश है और उनकी पूरी सपोर्ट है हमें कि हम इस ग्राउंड को एक बिल्कुल नए लुक में लेकर आएँ। और भाई एक बड़ा तोहफा जो हम देने जा रहे हैं वो है ग्रीनरी। आप समझते हैं कि मतलब ये एक मिट्टी है यहाँ पर और यहाँ पर ये फेडरल भी रह के बड़े ग्राउंडों में इसका शुमार होता है। यहाँ पर नौजवान आते हैं, नाइट क्रिकेट खेलते हैं, डे क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इसको एक स्टेडियम की लुक भी दी जाए, तो हम इसको ग्रीनरी करने जा रहे हैं और ये काम इंशाअल्लाह ताला विदिन अ मंथ हम मुकम्मल कर लेंगे। ग्राउंड में तरक्याती कामों में तेजी देखकर मकीन भी खुश। कहा 24 साल बाद ग्राउंड में फ्लड लाइट लगी हैं और ग्राउंड को दोबारा इसकी शक्ल में तब्दील किया
किया है, जो खुश आइंद है। क्योंकि 2001 में जब इसके अंदर लाइटें लगाई गई थी नेमतुल्लाह खान के दौर में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लाइटें खस्ता हाली का शिकार बनती गई और लाइटें ख़त्म हो गई, और उसके बाद इस इलाके का जो नौजवान था वो बुरी हालतों के अंदर, बुरी एक्टिविटी के अंदर जो है मुब्तला हो गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से इनिशिएटिव लिया गया है, ग्राउंड के अंदर लाइटें लगाई गई हैं, ग्राउंड को एक स्टेडियम का लुक देने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह ताला कि स्टेडियम बन जाए। ग्राउंड में जॉगिंग ट्रैक और ग्रास का काम मुकम्मल होने के बाद इलाकाई सतह पर क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने के साथ और ग्राउंड का इफ्तिताह किया जाएगा। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। स्ट्रीट क्राइम से परेशान ताजरों ने अपनी मदद आप के तहत सिक्योरिटी इक़दाम शुरू कर दिए। जूना मार्केट में अब 36 CCTV कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं। सदर शॉपकीपर एसोसिएशन रईस खान ने कहा कि कैमरे लगने से जराइम में वाज़ेह कमी आई है। कैमरों का नेटवर्क मजीद वसी किया जाएगा। काविश मेमन की रिपोर्ट। स्ट्रीट क्राइम से परेशान ताजिरों ने अब खुद मैदान संभाल लिया। जूना मार्केट के ताजिरों ने CCTV कैमरों का जाल बिछा दिया। सदर जूना मार्केट शॉपकीपर एसोसिएशन रईस खान का कहना है कि मार्केट में अब तक 36 कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं, जिसके बाद छोटे बड़े जराइम में वाज़ेह कमी आई है और ताजिरों के साथ साथ खरीदारों को भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हासिल हुआ है। अब तक हमने तकरीबन 35-36 कैमरे लगा चुके हैं। मजीद कैमरों की भी हमारा इरादा है कि लगाएं। ये सब कैमरे हमने अपनी मदद आपके तहत लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से हमारे मार्केट में काफ़ी अमन आया है, कोई शिकायत नहीं आई। इससे पहले गाड़ियाँ माल लेके जाते थे, रेशके वगैरह और बाकी छोटे मोटे क्राइम भी होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से कैमरे लगाए हैं तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई आज तक और सब सही चल रहा है। मार्केट के दुकानदारों ने भी ताजिरों के इकदाम को सराहा और बताया कि कैमरे लगने के बाद चोरी और दीगर जराइम में कमी वाक़ई हुई है। कैमरे लगाने की ज़रूरत यूँ पेश आई क्योंकि पहले काफ़ी दफ़ा रमज़ान में, ख़ास तौर पे रमज़ान के टाइम पे चोरी चकारी का माल लोगों का बाहर पड़ा होता है और यहाँ पे कचरा उठाने वाले जो घूम रहे होते हैं ना, तो अक्सर जो है ना माल वो ले जाया करते थे। हमारे जो मार्केट के जो सदर है रईस साहब, इसने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया कैमरे के हवाले से। इसमें बड़ा फ़ायदा हुआ है मार्केट को, यूनियन को भी। इसमें काफ़ी मुश्किलात जो है उनका भी हल हुआ है। मार्केट इंतजामिया ने मुतालबा किया है कि ट्रैफिक के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जाए, क्योंकि मार्केट आने वाले शहरी शदीद मुश्किलात का सामना करते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कारोबारी हवाले से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी, इख्तिताम पर फिर 1500 पॉइंट्स प्लस हो गए। काविश मेमन की रिपोर्ट। जियो पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल, सरमायाकार तज़ब्ज़ुब का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ दिन भर उतार चढ़ाव का मौके पर इंडेक्स 1794 पॉइंट्स कमी से 1,80,589 पर आया। टाम 100 इंडेक्स 1,567 पॉइंट इजाफे के साथ 1,83,991 पॉइंट्स की सतह पर बंद। कारोबार के दौरान इंडेक्स ने 1,84,304 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी देखी गई। मार्केट माहिरीन के मुताबिक जियो पॉलिटिकल सूरत-ए-हाल में गर्मा गर्मी सरमायाकारों की जानिब से मुनाफे के हुसूल के बायस मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार है। देखिए, मुसलसल 3 रोज से जो है मार्केट में प्रेशर है और इसकी जो बुनियादी वजह जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है हासिल तौर पे ख़राब होना शुरू हुई है, लेकिन जो है पाकिस्तान को इतना खास फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके साथ साथ आपने देखा कि प्रॉफिट टेकिंग भी मार्केट में देखी गई। अच्छा लेवल पे जो है इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुक किया और साथ साथ अब नई जो है इन्वेस्टर के लिए जगह भी बनाई है ताकि वो नया इन्वेस्टर भी इससे फ़ायदा उठा सके। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,82,384 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन इमरान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सोने और चांदी का नया रिकॉर्ड। 1 तोला सोना 900 रुपये महंगा होकर 4,81,862 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी भी 180 रुपये महंगी होकर पहली बार 9,000 रुपये से भी तजावुज़ कर गई। सराफा डीलर्स कहते हैं कि सोना महंगा होने की वजह से अब चांदी का कारोबार ज्यादा हो रहा है। अशरफ खान की रिपोर्ट। सोने और चांदी की ऊंची उड़ान। आलमी बाजार में महफूज सरमायाकारी पर खरीदारी जारी। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $9 महंगा होकर $4,595 फी ऑन्स पर पहुंच गया। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 900 रुपए महंगा होकर 4,81,862 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना 771 रुपए महंगा होकर 4,13,118 रुपए की बुलंद सतह पर
पहुंच गया। एक तोला चांदी ने 180 रुपए इजाफे से 9,075 रुपए की बुलंद सतह कायम कर दी। ऑल पाकिस्तान जेमर्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन अब्दुल्ला चांद का कहना है कि सोने में खरीदारी ना होने के बराबर है, मगर चांदी का काम तेजी से चल रहा है। जैसे जैसे सोना महंगा हो रहा है इस तरह चांदी भी महंगी हो रही है, और चांदी में लोग जो है अब वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, इवन के प्योर बार्स भी ले रहे हैं, और चांदी की ज्वेलरी को भी जो है वो लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सोना जो है अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है और अब वो हायर क्लास की हद में रह गया है, और जो एक मिडिल क्लास तबका है या लोअर क्लास तबका है अब वो चांदी की ज्वेलरी या इमिटेशन ज्वेलरी में सेटल हो गया है। सराफा डीलर्स का कहना है कि अब आवाम पुराने सोने को ही नए सेट में तब्दील करते हैं, मगर ज्यादातर अब चांदी पर सोने का पानी लगवाकर ही नए सेट बनाने का रिवाज है। अशरफ खान, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।